वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. Good evening, ladies and gentlemen. I am Neha Muchar, a member of Flow Indore, and it's my privilege to welcome you all today. So before we begin, can we all just not do anything for like next 5 seconds? I know you all look so beautiful and you want to get beautiful pictures, great, but maybe for just next 5 seconds, no phones, no fidgeting, no thinking what's there for hygiene, yeah? Okay, I think probably that was the longest 5 seconds, at least for me it has been, and that's why this evening matters, and it will be very important for you to all be settled in, because that's only how you'll be able to absorb and take in what we've planned for you. So on that note, requesting you all to please put your phones on silent, settle down and just take in what's about to come. I am a proud Flowite. We all tried the quick 10 minutes meditation and somehow finished it in 3. Not this evening. This evening is part celebration, part gratitude, and part something deeper. Take a breath, let's begin. We have a very special arrival this evening. May we request our chairperson, CA Shweta Agrawal, to escort our honored guest into the hall. And to all of you, we've placed a musical instrument at your seats. Some of you must have collected this at the entry. Please play it along as the guest enters to welcome him. A solemn beginning. With folded hands and the deepest respect, we welcome our honored guest for the evening, Nityananji Chandas, formerly known as Ravatji, and a very warm welcome to every flow sister in the room, every member, past chair, committee member who made this chapter what it is. Welcome to all of you. You know, some evenings, they're just smart events. There are evenings like this that mark something. This is the closing session of Flow Indore 25-26. What better way to close the year of building, creating and giving than with an evening about stillness, connection and going inward. जो अध्याय पूरे दिल से लिखा गया हो, उसका अंत भी एक शुरुआत ही होती है. The best big closings are not endings. They are the pause before something new begins. May I invite our honored guest Prabhuji, past chair GB member Ms. Mamta Bakliwal, immediate past chair architect Vibha Jain Sethi, chairperson C. Shweta Agarwal and chairperson-elect Ms. Vandana Vijlati to kindly join us on the stage for the ceremonial land lightning. Before we move further, we'd like to take a moment to honor someone whose presence this evening means a great deal to all of us. Prabhuji, this is a small gesture, but it carries the gratitude of this entire room. Architect Vibha Jain Sethi, immediate past chair. Her wisdom,
Experience and constant guidance have been a strong support for the entire team this year. Thank you, Vibhaji. Ms. Vandana Gujrati, incoming chair. Her grace, positivity, and readiness to step forward gives us great confidence for the year ahead. Thank you, Anurag. Yes, I'm working on Architect brought wonderful energy to our events and initiatives this year. Thank you, Srinath. CEO Karchana Rathore, Treasurer. With dedication and sincerity, she ensured every responsibility was handled with care and efficiency. Thank you, Karchana. CA Neha Firoda, Joint Treasurer. Her discipline, organization, and constant support behind the scenes kept everything running smoothly. Thank you, Neha. Ms. Sapna Khandelwal, Secretary. Her dedication, systematic work style, and commitment ensured flawless coordination throughout the day. Thank you, Sapna ji. Ms. Rachna Mittal, Joint Secretary. Her calm nature and readiness to support everyone made her a true pillar of strength for the team. Thank you, Rachna ji. Ms. Anupama Modi, who led the startup vertical and flow. Her clarity of thought and result-oriented approach gave strong direction to the team's work. Thank you, Anupama. Ms. Gini Chawla, Initiative Head. Her creativity and insightful ideas added a special charm to many of Flow Resorts initiative. Thank you, Gini. Ms. Park Nandafi, Initiative Head. Her innovative thinking and entrepreneurial spirit brought new dimensions to our programs this year. Thank you, Palak. Ms. Richa Sanjeev, Initiative Head. Her energy, conviction, and readiness to step forward made her a strong contributor to the team. Thank you, Richa. Ms. Abha Jajulia, her strong connections, quick support, and ever-ready presence made her a pillar of strength throughout the year. Thank you, Abha. Ms. Ankita Thavia, her creativity, dedication, and eye for detail gave a distinct identity to our events and communications. Thank you, Amrita. Ms. Gurpreet Kaur, her technical expertise and professional approach added great strength to our presentations and event execution. Ms. Julie Chen, her smart thinking, enthusiasm, and readiness to contribute made her a wonderful addition to my team this year. Dr. Kopal Maheshwari, from stage planning to podcast, her precision and readiness to step in ensured every event was executed beautifully. Thank you, Kopal. Ms. Neha Jain, her thoughtful writing and calm approach added great value to our content and communication. Thank you, Neha. Ms. P.E. Tiwari, her dedication, creativity, and willingness to take on every task brought freshness and positivity. Thank you, Nikki. CA Priya Bindal, her professionalism, efficiency, and lively energy made her a wonderful part of the team throughout the year. Thank you, Neha. Priya. Dr. Priyanka Mokshma, her composed leadership and dependable support ensure that every event runs smoothly. Thank you, Priyanka. CA Rashi Mantri, who led Flow Connect, her structured approach and attention to detail kept coordination clear
and efficient throughout the year. Like it Miss Ruchi Gupta. Her clarity of thought, discipline, and readiness to support made her a dependable member of the team. Thank you, Ruchi. Miss Sonali Sancheti, her beautiful writing and artistic expression gave voice and depth to many of our ideas and initiatives. Thank you, Sonali. Miss Surabhi Shah, her strong work ethic, structured approach, and commitment to excellence reflected in everything she handled. Thank you, Surabhi. Miss Vaishali Shivharit, working silently behind the scenes, her planning and organization ensured everything stayed on track. Thank you, Vaishali. Architect Varsha Dagra, her enthusiasm and leadership in the wedding initiative and skidding programs brought wonderful energy to the team. Thank you, Varsha ji. Last but not least, Dr. Veena Naik, her intelligence, dedication, and readiness to step forward wherever and whenever needed made her a valuable part of the team. Thank you, Veena ji. Let's give a big round of applause for all our celebrities. Can we have everyone on stage for one big recap? Every organization has a leader, but not every organization has someone who makes you feel like you belong. Someone who answered the midnight WhatsApp. Someone who fought for ideas that weren't even hers. Someone who made this chapter feel like a family. Shweta, you just didn't share Mickey Flow in Dawn this year. You led with a purpose, quietly, firmly, and with so much heart that most of with so much heart that most of us never saw the effort behind the grace. कहते हैं कि फूल की खुशबू को अनाउंस नहीं करना पड़ता है, वो अपना काम खुद कर देती है. And Shweta, that's you. So, for the last time as chairperson of Vicky Flow Indore, may I invite CA Shweta Kapoor. Hi everyone, good afternoon, good evening. सबसे पहले फ्लो इंदौर की इस ब्यूटीफुल शाम में आप सभी का दिल से स्वागत है. आज का दिन थोड़ा सा नहीं, आई थिंक बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, थोड़ा इमोशनल भी है. Standing here today and giving my last chairperson address is not easy. Believe me, it's very emotional. Anyways, so for preparing for today, I was just thinking, how should our last chairperson address be? Should it be statistics? Should it be very formal? Or should it be all about what we did, पूरा साल क्या किया, कैसे किया, क्या होना चाहिए? फिर सोचा ये सब तो आपने देखा हुआ है ना, रिपोर्ट्स में, नंबर्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में एंड सोशल मीडिया पोस्ट में. सो सोशल मीडिया, परफेक्टली क्यूरेटेड सोशल मीडिया, कितना अच्छा लगता है सब कुछ, एज इफ कितना ईजी होता है ना. सो वी ऑल नो समथिंग अबाउट सोशल मीडिया. इट इज सो पिक्चर परफेक्ट दैट वी डोंट सी व्हाट्स गोइंग बिहाइंड इट. तो आज हम बात करते हैं पीछे की कहानी. Instead of telling you a lot of numbers, let me tell you the moments that happened before the lights turned on.
And after the guests leave, the planning, the panic, and sometimes pure magic. So today, instead of giving you a lot of numbers and a formal summary of my year, I thought let's try something more interesting. The real behind the scenes story. वो वर्जन जो कभी ऑफिशियल बिजनेस में देखा नहीं जाता, सिर्फ तुम्हें पता होता है. वो वर्जन जहाँ लेट नाइट कॉल्स होते हैं, वो वर्जन जहाँ व्हाट्सएप ग्रुप अचानक से एक्टिवेट हो जाती है. Because if this year has taught me something, it is events don't happen just because of perfect planning. They happen because of teamwork. Because and a little of miracle management honestly. और इस साल की स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे फर्स्ट मिराकल से. हमारा पहला इवेंट चेंज ऑफ प्लान्स. अब हर चेयरपर्सन चाहता है कि उसका पहला इवेंट एकदम परफेक्ट हो, सब कुछ ग्रैंड हो, एलिगेंट हो और एक स्ट्रॉन्ग पिकनिक हो. एंड ऑनेस्टली हमारा इवेंट भी परफेक्टली प्लान था, कुछ गलती नहीं थी. हमारी गेस्ट थी वंडरफुल ताहिरा कश्यप. सब रेडी था, स्टेज, प्रोग्राम फ्लो, और फिर 2 रात पहले एक कॉल आता है. ड्यू टू सडन मेडिकल इमरजेंसी शी कांट ट्रैवल. अब इमेजिन करिए सिचुएशन. First event of the year, पूरा प्लान रेडी एंड सडनली गेस्ट स्पीकर इज नॉट कमिंग. कुछ सेकंड्स के लिए इट वाज अ टोटल ब्लैंक. एंड फिर जो हुआ वो इस साल का शायद थीम ही बन गया. पैनिक मोड छोड़कर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड पर कूद गए. मल्टीपल फोन कॉल्स, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स सब एक्टिवेट कर दिए. थैंक्स टू माय लास्ट चेयर्स, दे हेल्प मी सो मच एंड पूरा प्लान चेंज. और फिर जैसा कहते हैं जब टीम स्ट्रांग हो तो सॉल्यूशंस मिल ही जाती है. विद इन आवर्स वी वर फॉर्चुनेट टू हैव अमेजिंग नेहा धूपिया विद अस. और हाँ, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है वो मोमेंट सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, वो एक्चुअली इस साल की परफेक्ट बिगनिंग थी. बिकॉज उस दिन हमें समझ में आ गया प्लान्स चेंज हो सकते हैं, सिचुएशंस अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, लेकिन जब टीम इन्फिनिटी साथ हो तो वी आर बाउंड टू वर्क अगेन. ये था हमारा फर्स्ट बिहाइंड द सीन. एंड बिलीव मी इस साल की स्टोरीज खत्म ही नहीं हो सकती. इनफैक्ट दे गेट मोर इंटरेस्टिंग फ्रॉम नाउ. नेक्स्ट हमारा क्लोज टू हार्ट मदर्स डे इवेंट. आइडिया बहुत ब्यूटीफुल था. बोथ साइड्स ऑफ पेरेंट्स को बुलाना, ग्रैटिट्यूड देना, एक हैप्पी इवनिंग शेयर करना. और इवेंट से 3 दिन पहले इंडिया पाकिस्तान वॉर टेंशंस. गवर्नमेंट डिसअलाउड ऑल पब्लिक इवेंट्स. उस दिन हम डेवलॉर और रिहर्सल्स छोड़ के परमिशंस एंड कॉन्फर्मेशंस में रन कर रहे थे. पुलिस स्टेशन, डिपार्टमेंट, आई डोंट नो वेयर. एंड फाइनली शाम को 7 बजे वी गॉट द परमिशन टू होस्ट द इवेंट. That was super fun. And after that, इसके बाद my team said, चलो rehearsals करते हैं. But somebody said, please पहले चाय पिला दो. So yeah. Next was our event with Indian blind football team. We wanted it to be a very sporting, inspirational, a tough event, full of interaction. लेकिन nature ने कुछ और ही सोच रखा था. कुछ तो ड्रामेटिक होना ही था ना, ऐसा कैसे? नेचर थॉट आज इनका रेजिलियंस टेस्ट करते हैं. और जब शो स्टार्ट होने वाला था, पावर फेलियर, सुपर हेवी रेनफॉल, सब कुछ बंद एंड सेमी पावर फेलियर. यही नहीं पता चल रहा था चल क्या रहा है, बंद क्या है. द होल टीम गॉट एक्टिवेटेड, फुल ऑन मूड. कोई जनरेटर चेक कर रहा है, कोई टेक्नीशियन ढूंढ रहा है, कोई टीम को सपोर्ट कर रहा है. And I was sitting only quietly. हे भगवान बस माइक चलना चाहिए, बाकी सब देख लेना. But somehow everything came together. वो इवेंट सिर्फ सक्सेसफुल नहीं था, it became one of the most inspirational events of the year. फिर एक स्पेशल इवेंट जिसने मुझे बहुत सरप्राइज किया, द इनक्रेडिबल हरीश साईरामन शो.
सर ने बोला मैडम एक एक्टिविटी होगी, आयरन रॉड बेंड करनी है। हाँ ठीक है। बोले नेक्स्ट डे, ये तो क्या बोल रहे हो, नेक्स्ट ईयर फॉर्म में डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा अगर ये वायरल हो गया तो। बट ट्रस्ट मी, दैट वाज whoever attended, that was one of the most adventurous moments of the year. And we all had so much to talk about. उसके बाद हमारा एक मोस्ट एम्बिशियस इनिशिएटिव वर्टिकल फॉर द ईयर फ्लो शादी व्यक्ति। बहुत सारी प्लानिंग, डेकोर, रिहर्सल्स, कोरियोग्राफी सब रेडी था, परफेक्टली रेडी। एंड इवनिंग बिफोर द शो कोरियोग्राफर आके बोलते हैं मैम ये साउंड इंजीनियर तो नहीं चलेगा, डायरन भी हो चुका है, हाँ सब कुछ रेडी एंड यू डोंट हैव अ साउंड इंजीनियर विद यू। हमारे पास साउंड इंजीनियर नहीं है, आप सोचिए, एंड पूरा प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द साउंड वाले। और उस समय हमारा नेटवर्क गूगल से भी फास्ट आ रहा था, कॉन्टैक्ट्स, रेफरेंसेस, एवरीबडी वाज रनिंग। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली द होल सेटअप वाज रेडी। और जब शो स्टार्ट हुआ, स्टेज पर सब कुछ कितना परफेक्ट था ना, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। ऑडियंस को लगा सब कितना एफर्टलेस से गया, सब चलता रहता है ऑटो मोड पे। बट नहीं, द होल टीम वाज एट द बैक स्टेज, सबका बीपी हाई। But like this, we have numerous incidents. I can go long and long for the whole day. And they are all simply wow. Stories like Shadi Miss remind me what happens so much behind the scenes. Every event has its own drama, last-minute surprises, and moments of pure teamwork. Yes. But with the incredible support of my seniors, my team, my members, your patience in me has never let us down. And a committee who always stood for each other. This year, we have successfully completed 60 events. And somehow the journey continues. You also introduced a very small initiative, Penalty. Only for confirmed members who did not attend my exam. But honestly, the idea was very simple. Please respect your own yes, and was nothing else. और मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी ने उसे बहुत पॉजिटिवली लिया। और जो हमारा अमाउंट कलेक्ट हुआ, we have given it for a very meaningful cause. Money has been donated to Indian Blind Football Federation. Money has been donated to Indian Blind Football Federation for men and women food expenses for the training camp for a championship to be held in Japan this year. So in a way, dear members, even a missed event ended up in supporting somebody's dream. So before I conclude, I want to express my deepest gratitude. अगर चेयरपर्सन एक कैप्टन है तो कमेटी पूरी क्रिकेट टीम एंड समटाइम्स द थर्ड एम्पायर। सच कहूँ तो हर इवेंट से पहले हम सिर्फ एक सेंटेंस बोलते थे, सब कुछ कंटिन्यू में है ना, एंड इसके पीछे जो साइलेंस था वो किसी को नहीं कर रहा। माई हार्टफेल ग्रैटिट्यूड टू ऑल माई पास्ट चेयरपर्सन जिन्होंने गाइडेंस दिया, रीअश्योरेंस दिया और कभी कभी सिर्फ एक सेंटेंस बोला, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। स्पॉन्सर्स, स्पेशल थैंक यू टू यू। हमारे पास पैशन था, एंथुसियाज्म था, बट विदाउट फंड्स नथिंग इज पॉसिबल। वो सिर्फ एक इमोशन बन के रह जाता। थैंक यू सो मच। लीडरशिप इन फ्लो इज लाइक अ रिले रेस, और आज बैटन पास करने का टाइम है। It gives me immense pleasure to welcome my incoming chairperson of Fiki Flow Indore, Ms. Sandhya. Sandhya ji brings warmth, clarity, and enormous strength to leadership. मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अंडर हर गाइडेंस फ्लो विल रीच टू हाइट्स and our special journey will continue. Vandana ji, the stage, your journey is all yours.
आज की शाम को खूबसूरत बनाने के लिए we have Guruji Nityanand Charandas ji from ISKCON. Thank you so much for blessing us with your presence. We are eagerly waiting to hear from you, sir. Finally, last but not the least, इस साल ने मुझे एक इम्पॉर्टेंट लेसन दिया. एक ऑर्गेनाइजेशन कभी परफेक्ट प्लानिंग से सक्सेसफुल नहीं होती. वो सक्सेसफुल होती है जब टीम परफेक्ट हो. एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे इतनी अमेजिंग टीम मिली. स्टेज पर जो शाइन दिखती है उसके पीछे फुल बॉलीवुड ड्रामा चलता है. ऑनेस्टली अगर कोई ये साल मुझे फिर से जीने को कहे विद द सेम क्योस, सेम स्ट्रेस, सेम मिराकल्स, आई वुड से यस, because I am in this journey with all of you. Thank you so much. Have a beautiful evening ahead and everything. Thank you, Shweta. I don't think anyone in this room was just listening to that. We were all feeling it. A year doesn't become a chapter. A year doesn't become a chapter worth remembering by accident. It takes someone who cares enough to pour themselves into every detail, every decision, every person. And that someone for this chapter was you, Shweta. And now, we arrive at the heart of this evening. We've celebrated a year, we've honored the people who made it happen, and now we turn inward. Krishna mam sarvasam tasmai namah. Krishna is my everything, unto him I bow. Our guest this evening carries a message that is as simple as it is profound. He says, spiritual life is not a life of rejection, it is a life of connection. We don't need to give up anything, we only need to embrace a dimension that enriches everyone. He is Nityanand Charandas Prabhuji, an esteemed spiritual counselor and a practicing monk for the past 19 years at ISKCON South Mumbai. He is a disciple of the world-renowned spiritual leader, philanthropist and best-selling author, His Holiness Radhanand Swamiji. Prabhuji himself is a celebrated author of several national bestsellers. Deeply committed to enriching urban lives, he helps individuals lead lives of purpose and fulfillment, both professionally and personally. What makes him truly special is his work with the next generation. He mentors teenagers and young professionals, inspiring them to reconnect with their roots and live a simpler, more intentional life. Guruhu Krishnasva Kriparupa Tasmai Namaha. The Guru is the embodiment of Krishna's grace. My pranam to him. So, ladies and gentlemen, may we now invite Prabhuji and our chairperson, C.A. Shweta Agarwal, to take the stage for a conversation we believe you will carry home with you today. Prabhuji, Shweta, the stage is yours. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna everybody. प्रभुजी आजकल की दुनिया कितनी डिफरेंट है ना, और कितनी अनरियलिस्टिक. हम सबको वो चाहिए जो हमारे पास नहीं है, और जो है उसका ग्रैटिट्यूड हम कम मानते हैं जितना मानना चाहिए. आई थिंक फोमो, एंजाइटी, कंपैरिजन एंड कंपटीशन, ये वर्ड्स आजकल हम रोज सुनते हैं. तो सबसे पहला सवाल जो मुझे आपसे जानना है, हमारी डिक्शनरी का एक बहुत कॉमन वर्ड है फोमो. ऐसा क्यों होता है कि हमको सोशल मीडिया से या कुछ भी देखकर वही चाहिए होता है जो सामने वाले के पास है, या वी आर नॉट सेटिस्फाइड? सो प्लीज. Hare Krishna. Full volume. वॉल्यूम. Hare Krishna. Let's go. Hare Krishna. Can everyone hear at the back?
And last, सबसे पहले श्वेता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड many thanks to all of you for allowing me an opportunity to serve others. फ्लो से मेरा रिश्ता थोड़ा पुराना है। कोविड से शुरू हुआ था कलकत्ता फ्लो, जब हमने गीता किया था पूरा उनके साथ ऑनलाइन, एंड यहाँ आना भी उसके थ्रू ही हुआ। बिल्कुल फ्लो कोलकाता से कनेक्शन हुआ हमारा। जी। एक चीज़ मैंने देखी, आपके बहुत फैंस हैं इधर। Friends, They all love you. family. And this is so amazing to see so much love amongst all of you. Because before I answer the question, भागवत में एक एपिसोड आता है हिंदी जहाँ पे किंग प्राचीन बरहिषद, उनके कुछ बेटे हैं, 10 बेटे, उनको कहते हैं आप तपस्या कीजिए, जाके अपने आप को शुद्ध कीजिए, प्यूरिफाई कीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको शादी करनी है। आप सोचेंगे शादी से पहले तपस्या क्यों, तो बाद में होती है। Before marriage wonders happen, after marriage you wonder what happened. क्योंकि कोई भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जितना प्योर होंगे उतना अच्छे से उसको निभा पाएंगे। इट्स अ वैदिक प्रिंसिपल, ये धर्म शास्त्र में लिखा है, जितना व्यक्ति का हृदय शुद्ध होगा उतना अच्छे से वो निभा पाएगा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो शादी भी एक से बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तपस्या करने जाते हैं, शिव जी मिलते हैं, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उनको मार्ग दिखाते हैं, स्तुति देते हैं, ये स्तुति कीजिए भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। और वो लोग जल के नीचे जाके तपस्या कर रहे हैं, हाथ में हाथ डाले, और एक दिन भगवान विष्णु प्रकट होते थे। तो भगवान का पहला सेंटेंस क्या था, मैं आप लोगों की तपस्या से प्रकट नहीं हुआ, आप लोगों के बीच में जो प्रेम है, कोऑपरेशन था, उसको देख के मैं आया हूँ। तो जहाँ पे भगवान देखते हैं आपस में इतना प्रेम है, कोऑपरेशन है, वहाँ सक्सेस होगा ही होगा। इसलिए दिस इज वेरी इन अ वर्ल्ड वेयर देयर इज सो मच कंपटीशन। तो बात फोमो की, कि क्यों इतना फोमो है लोगों को, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कुछ सालों तक ये पहले तक नहीं था। अगर आपको फोमो खत्म करना है, बस एक काम कर दीजिए, 90% खत्म हो जाएगा। सोशल मीडिया छोड़ दीजिए। आप बोलेंगे प्रभु जी ये तो आपने हमारी जान ही मांगी, आप हमारा किडनी ले लीजिए, लेकिन ये मत कीजिए। क्योंकि जब हम दूसरों की लाइफ पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो कंपैरिजन मोड में चला जाता है माइंड। और ये कब होता है, अनकंट्रोल्ड माइंड। देयर आर 3 कैंसर्स ऑफ द माइंड, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म एंड कंप्लेनिंग। तो जब माइंड अनकंट्रोल्ड रहता है तो इन चीज़ों से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। जब माइंड कंट्रोल्ड है तो ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ों पे फोकस करेगा वो। तो सबसे बड़ा जो डिजीज़ है इस समय, भागवत में है, गीता में आता है, 5000 साल पहले ही बता दिया गया था, सबसे बड़ा डिजीज़ होगा मेंटल हेल्थ, माइंड से रिलेटेड डिजीज़। So the problem is not what others are doing, the problem is we are not doing enough to take care of our mental state. और सोशल मीडिया उसको एक्सपैंड करता है। बीच बीच में ये न्यूज़ आता है कि अरे लोगों का ये अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, इसलिए 6 सेकेंड के रील्स बनाओ, 3 सेकेंड के रील्स बनाओ, 10 सेकेंड। आप में से कितने लोग इंस्टाग्राम पे हैं? कितने लोग नहीं हैं? ऊपर 2 लोग नहीं, 3, 4। देखिए अपना भी तालियों में दीजिए।
आज के युग में साधु वही है जो सोशल मीडिया पे कम टाइम बिताता है। तो जब आप वो स्क्रॉल करते हैं, देखिए माइंड को फोकस करना जरूरी है। एक चीज पे फोकस कैसे होगा? जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो यू आर ओनली वॉचिंग रील्स, 3 सेकेंड 6 सेकेंड में बदल रहे हैं आपको, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि यू आर कंडीशनिंग योर माइंड टू नॉट फोकस ऑन वन थिंग बियॉन्ड फ्यू सेकेंड्स। सबकॉन्शियसली कंडीशनिंग हो गया, और वो जो कंडीशनिंग वो आपके बाकी चीज़ों में निकलता है। आप काम करने बैठेंगे, मन 3 सेकेंड में भागेगा, किसी से बात करने बैठेंगे, फ़ोन की तरफ हाथ जाएगा। तो अनकंट्रोल्ड माइंड, इसलिए इतना डिस्ट्रैक्शन है, अपने पे फोकस नहीं, अपनी ग्रोथ पे। तो ये फोमो बढ़ता ही जा रहा है, कंपैरिजन मोड में हम चले जाते हैं। एंड द डीपर रीजन इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज हैप्पीनेस। सबकी लाइफ का गोल क्या है? टू बी हैप्पी। तो गीता में इसका सॉल्यूशन दिया गया, अगर ये फोमो खत्म करना है। फॉर दैट वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हु वी आर। गीता का पहला ही टीचिंग है, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस मैटर, we are spiritual beings, and therefore spiritual environment is our natural environment। और जब तक उससे जुड़े रहेंगे, जब तक भगवान से जुड़े रहेंगे, तब तक we'll be satisfied। जो हैप्पीनेस हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो इधर से उसका सप्लाई हो रहा है, अंदर से ही। तो बाहर किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि अंदर ही आपको फील हो रहा है एक्सपीरियंस। When we are lacking that satisfaction and happiness inside within us, then we keep looking for that happiness in things and objects and people of this world। तो जब वो एक स्पिरिचुअल डेप्थ आएगा, वो फोमो वगैरह सब खत्म हो जाएगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वेल सेटिस्फाइड। आप किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, बाहर से वैलिडेशन ज़रूरत ही नहीं है। एंड वी आर लैकिंग दैट स्पिरिचुअल डेप्थ, then these things can actually distract us। So the solution is to create that spiritual depth through our daily sadhana, naam jap mainly, through association with saintly people, reading scriptures. That creates that depth. Then we will not be affected by what happens on the surface level. Thank you, Guruji. Guruji, why is there always a constant pressure of proving ourselves? And also, why do we feel very sad when we feel we are left out in a group of people? सबके साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता होगा, आई थिंक, when we are in a group of people और हमें लगता है हमारी तो सुन नहीं रहे हैं, सब आपस में बात कर रहे हैं, we feel left out। तो वो जो तकलीफ होती है, वो उससे कैसे ओवरकम किया जाए? कौन किया आपके साथ ऐसा? You were the chairman. Who left you out? अब शायद Now you might feel। No, that desire to feel valued and loved and cared for, ये हमारा eternal constitutional position है। बट हम उसको गलत चीज़ों में ढूंढते हैं। A spiritual being trying to find happiness in matter, it's an incompatible situation। आप एक फिश को बाहर निकालिए पानी से, वो रेस्टलेस हो जाता है, क्योंकि हमारा जो नीड है टू फील लव, टू केयर फॉर, ये इटर्नल नीड ऑफ द सोल है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, गोलोक वृंदावन में भगवान कैसे सेटिस्फाई करते हैं इस नीड को? जब कृष्ण लंच के लिए बैठते हैं जमुना जी के तट पे, तो उनके चारों तरफ उनके सखा बैठ जाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, लेकिन हर बच्चे को ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं, हर सखा को कृष्ण, कि कृष्ण केवल उसी को देख रहे हैं। इस तरह से भगवान सेटिस्फाई करते हैं सबको। तो मटीरियल वर्ल्ड में जहाँ हम रह रहे हैं, ये नीड पूरी तरह सेटिस्फाई हो नहीं सकता एज लॉन्ग एज यू आर लुकिंग फॉर दैट validation from outside, because material platform जो होता है, this whole world is made of matter, this is the material world, it's a shaky platform। Matter means everything will have a beginning and an end। So unless you connect to a current which is ever flowing, which is permanent, God's name is permanent, your
His scriptures, His word is permanent, devotional service is permanent. जब तक वो नीड सेटिस्फाइड होगा नहीं. जैसे एक फिश है, आप फिश को बाहर निकालिए पानी से, पूरे वर्ल्ड टूर पे ले जाइए, चाहे इंदौर की गलियों में खिलाइए उसको जो भी आपका जलेबी फाफड़ा, वो सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक पानी में नहीं है. आप एक गुजराती को ले जाइए पूरे वर्ल्ड में, उसको बाकी पास्ता पिज़्ज़ा खिलाए नहीं चलेगा. कितने गुजराती हैं हम? मारवाड़ी? मैंने इनको पूछा ज़्यादा मारवाड़ी होंगे यहाँ पे. नहीं, यहाँ सब बैलेंस है. She was being diplomatic being the chairperson. कल शायद मुझे बता दें. तो गुजराती को पिज़्ज़ा पास्ता खिलाई, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वो सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा उसको? ठीक है. That's not discussion. खाने का डिस्कशन सुन के इंदौर में एक लहर आ जाती है. उसी तरह एक नॉर्थ इंडियन है, हार्डकोर नॉर्थ इंडियन खाने का होती है. तो आप मुझे खिला के बैठेंगे गुजराती खाना जिसमें शुगर डालते हैं हर चीज़ में, तो हमको चाहिए एकदम स्पाइसी. तो इट डजंट कनेक्ट. जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है, जब आप उससे जुड़े रहेंगे, दैट इज द मिसिंग लिंक बिटवीन आवर एस्पिरेशन टू बी हैप्पी एंड एक्चुअल हैप्पीनेस. वो जो नीड है, बिकॉज वी आर यूज्ड टू that kind of treatment by Krishna in the spiritual world where he makes everyone happy, he makes us feel valued. तो उस चीज़ को हम यहाँ ढूंढते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कई बार जानबूझ के लोग वो नीड हमारी पूरी नहीं करेंगे, कई बार अनजाने में उनसे नहीं होगा. They may not be capable of doing that. तो जब तक हम उसको बाहर ढूंढते रहेंगे, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. वो अंदर ही ढूंढना इधर ही है. जैसे गीता के दूसरे अध्याय में आखिरी श्लोक में कृष्ण कहते हैं, द सेकेंड लास्ट वर्स, ही गिव्स द एग्जांपल. बहुत अच्छा एग्जांपल है. देयर इज अ puddle of water and then there is the ocean. अब ओशन में देखिए कितना पानी गिरता है हर सेकेंड. सारी नदियाँ ओशन में आती हैं, बारिश के समय गैलन्स ऑफ वाटर इज poured into the ocean. But does the ocean seem to get affected? There is a puddle of water. बारिश जैसी थोड़ी सी होती है भर जाता है, गर्मी आई सूख जाता है. ओशन रिमेन्स स्टिल इन समर और विंटर और रेनी सीजन. क्यों? बिकॉज द ओशन हैज डेप्थ. अ puddle of water is shallow, इसलिए इजीली गेट्स अफेक्टेड बाय व्हाट्स हैपनिंग अराउंड. तो हमारा वो जब डेप्थ हम क्रिएट करेंगे, आप मुझे 10 बार ऐसे प्रश्न पूछेंगे, यू कांट गेट अराउंड दिस प्रिंसिपल. We are restless because we are disconnected from our natural environment. इसलिए वो बाहर चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, मटीरियल चीज़ों में, which is a temporary platform which keeps changing. We are not connecting to that which is permanent. और दूसरी चीज़ है, वो एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दीजिए. We can have expectations in life, but not unrealistic ones. Unrealistic expectation क्या है? Everyone should love me, everyone should like me, everything should happen the way I want. The greatest cause of anxiety is to be in control of everything and every situation and everyone. Unrealistic है. Acceptance. Sometimes we will get what we want, sometimes we will not. That's life. But we keep moving, keeping a higher purpose in mind. So गुरुजी, ये जो आपने अभी बताया, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो क्यों हमारे इतने वर्ल्ड लीडर्स लड़ रहे हैं? अब अगर कुछ पाने के लिए इतना नुकसान हो रहा है, इतना मतलब वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ वर्ल्ड वॉर. सो मतलब उनको क्या ये समझ में नहीं आ रहा है? दे आर डिस्ट्रॉइंग द होल वर्ल्ड फॉर जस्ट सम मटीरियलिस्टिक थिंग्स. पूछ के बताता हूँ. एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, और कलयुग जो है अधर्म का युग है. और अगर आप भागवत पढ़ेंगे, 5000 साल पहले भविष्यवाणी है कि अधर्म को अगर फैलना है
तो जो लोग सोसाइटी को गाइड करना, जिनका उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पे उनको बिठा दो, तो लोग गलत चीज़ से गाइड, गलत तरीके से गाइड होते रहेंगे। इट्स वेरी रेयर टू फाइंड एन ऑनेस्ट एंड अ राइटियस लीडर दीज डेज, बिकॉज जब लीडर धार्मिक, और वो राइटियसनेस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियोसिटी, धर्म। तो आप जितने भी देख लीजिए राजा महाराजा जो थे, रूल करते थे वर्ल्ड को, किंगडम्स को, दे वुड रूल, दे वुड एग्जीक्यूट, बट दे वर ऑलवेज गाइडेड बाय सेंटली पीपल, were always under the guidance of saintly people, and saintly people had the power to change the king if they thought he was not doing his duty properly. भागवत में बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं पास्ट में, क्योंकि धर्म नष्ट हो गया है। और ऐसा भी नहीं कह सकते धर्म नष्ट, अधर्म बढ़ रहा है और पाप बढ़ रहा है, इसलिए लोगों की बुद्धि नष्ट हो। और जब population becomes very sinful, then there is wholesale karmic reaction which comes in the form of wars, floods, pandemics. तो हमको, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये पूरे वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा हो, पूरी दुनिया कल का नष्ट हो जाए, बट इफ यू आर लीडिंग अ वेरी pious, sattvic, pure religious life based on God-given principles and siddhanta, even if the whole world gets destroyed tomorrow, I am telling you this today, nothing will happen to you. Because dharma eva hato hanti dharmo rakshati rakshita. धर्म का जो पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म का विनाश करता है, धर्म उसका विनाश कर देता है। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो वर्ल्ड सिचुएशन क्या हो रहा है, कोई बदलने नहीं वाला, वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ें होगी। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। लेकिन वी एज इंडिविजुअल्स हैव एन ऑप्शन, हम अधर्म के मार्ग में नहीं चलेंगे। पांडवों के ऊपर कितने खतरे आए, उसमें भी बड़ा वर्ल्ड वॉर हुआ था। बचपन से उनको मारने का प्रयास किया गया, जहर दिया गया, पत्नी का इंसल्ट किया गया, राज्य छीन लिया गया, जंगल भेज दिया गया, राक्षस भेजे गए मारने के लिए, ऋषि भेजे गए श्राप देने के लिए, फिर वो बड़ा इतना बैटल हुआ। लेकिन सब में पांडवास और अनहार्म्ड, एक खरोंच तक नहीं आई। और उसका आंसर दिया भीष्म पितामह ने भागवत में, जब ही ऑन द बेड ऑफ एरोस युधिष्ठिर को बता रहे कि आप लोगों के ऊपर इतने खतरे आए, 3 कारण बताया जिसके कारण उनका कुछ बिगड़ा नहीं, बच गए। पहला बताया योर फेथ इन कृष्णा, कितना भी कुछ गलत हुआ पांडवों के साथ, कभी उन्होंने अपनी श्रद्धा कम नहीं होने दी भगवान में। यहाँ तो लोगों के जीवन में कुछ शेयर मार्केट में लॉस हो गया, पूजा पाठ बंद कर देते हैं। वन लेडी टेल्स मी, मैंने तो चैंटिंग छोड़ दिया है। मैंने कहा क्यों, मुझे कोविड क्यों हुआ? मैंने कहा गुस्सा करना तो मच्छर नहीं, वो वायरस से बढ़िया, भगवान से क्यों लड़ रहे हैं? तो किसी भी हालत में पांडवों ने अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अपना फेथ कृष्ण में कम नहीं होने दिया। इसलिए कृष्णा वाज ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट हिम, बिकॉज ही हैज टू रेसिप्रोकेट विद आवर फेथ। और अगर ऐसा नहीं किया तो सारे शास्त्र झूठे हैं, सारे साधु संत झूठे हैं, भगवान भी झूठे हैं, विच इज नॉट ट्रू। सेकेंड चीज जो बताई, योर रेस्पेक्ट फॉर सेंटली पीपल। तो पांडवों ने इतना आशीर्वाद प्राप्त किया था साधु संतों का कि वो उनका कवच बन गया। तो जिनको साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त है, उनका भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान में भी शक्ति नहीं है। बलि महाराज का पास टाइम आता है भागवत में, तो जब देवताओं ने प्रार्थना किया, असुरों के राजा, उन्होंने बोले अभी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी हरा नहीं सकता उनको युद्ध में, क्योंकि ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त है। तो वो पांडवों का कवच बना। और तीसरा, दे ऑलवेज फॉलोड द पाथ ऑफ राइटियसनेस, कि उनके साथ अधर्म हुआ लेकिन वो अधर्म के रास्ते पर नहीं चले। दे डिड देयर धर्म, उन्होंने गलत नहीं किया, गलत रास्ता नहीं अपनाया, किसी को चीट नहीं किया, गलत नहीं किया। तो इन 3 चीज़ों से उनकी रक्षा हुई।
तो हम भी अगर अपने जीवन में ये 3 चीज़ें लेके चले तो दुनिया में कितना भी उथल पुथल हो जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। So stop focusing on things which are beyond your control. Otherwise, you will only get stress. कि लोगों का बिहेवियर क्या है, 10,000 माइल्स में क्या चल रहा है। आपका माइंड जिस चीज़ पे फोकस करेगा वही एक्सपैंड करेगा आपकी लाइफ में। If you focus on the good, वो एक्सपैंड करेगा। If you focus on the bad, वो बढ़ेगा। गुरुजी, आजकल एक और चीज़ बहुत सुनने में आ रही है, डिप्रेशन एंड टॉक्सिक बिहेवियर। Despite so much progress in technology, why do people seem to be more emotionally disturbed these days? And from a spiritual perspective, what exactly is toxic behavior? People are disturbed, people are toxic. Disturbed इसलिए कि they lack inner strength. Inner strength is synonymous with spiritual strength. वो है ही नहीं, क्योंकि there is no spiritual culture, there is no foundation, और spirituality है भी थोड़ा बहुत superficial हो गया है। लोग किसी रिजॉर्ट में जाते हैं पहाड़ों में, थोड़ा सांस अंदर बाहर कर लिया, सात्विक डाइट खा के आ गए, साइलेंस में बैठ गए 10 दिन, and they come back, oh it is such a spiritual place. ये क्या है? Spirituality is made up of the word spirit. Spirit means the soul. जब तक सोल के लेवल पे कोई काम नहीं होगा वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। माइंड बॉडी के लेवल पे हो तो मैटर ही हो गया, मटीरियल हो गया। तो पीपल लैक इनर स्ट्रेंथ एंड दे आर लिविंग लाइफ बेसिकली। हम लोग एक चीज याद रखिए, एक वेइंग स्केल है, तराजू है, देखा होगा आपने कि नहीं? इंदौर में होता है। तो मान लीजिए एक साइड ए है, एक साइड बी है। ए साइड इज द गुड साइड, बी इज द बी साइड। इस एग्जाम्पल को याद रखिए कि जितना भी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, सुख, सफलता, हैप्पीनेस, जितना भी हम प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, फेम, नेम, एडोरेशन, प्रेस्टीज, वेल्थ, ये जितना भी लाइफ में मिलता है ये किसके कारण होता है? हमारे पुण्यों के कारण। और जितना भी पेन हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, भले थोड़ा सा भी, इट इज़ द रिजल्ट और आउटकम ऑफ सम अनएथिकल, इमोरल, सिंफुल, गॉडलेस चॉइसेस। इट्स वेरी क्लियर, ब्लैक एंड वाइट। तो जब if somebody has led a very pious, sattvic, pure, religious life, God-centered life, तो अगर इधर वेटेज ज़्यादा हुआ इस साइड, ए साइड जो गुड साइड है, ऑटोमेटिकली फेवरेबल सर्कमस्टांसेस विल कीप मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। कि सिचुएशन कितना भी खराब हो, यू विल नॉट गेट अफेक्टेड। और अगर इधर वेटेज ज़्यादा है सिंफुल साइड में, ये चॉइसेस किए हैं, तो कितना भी अच्छा चल रहा हो आप दुखी रहेंगे। यू विल लैक दैट इनर क्लैरिटी, इनर स्ट्रेंथ। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर जीवन में कुछ समस्याएं बढ़ रही हैं, नेगेटिव साइड में और वेटेज मत बढ़ाइए। जैसे किसी के जीवन में कुछ गलत होता है तो पहली चीज़ क्या करते हैं, एक जनरल रिस्पॉन्स होता है, जिसने कुछ गलत किया उसको बुरा भला बोलना शुरू कर देंगे। कुछ गलत हो रहा है, गलत आदतों में चले जाने, गलत हो रहा है, गम बुलाने के लिए शुरू हो जाएंगे। लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ये सब तो और अनएथिकल हो गया है। इससे वेटेज और इधर बढ़ गया, इससे आपके जीवन में सिचुएशन बदलेगा नहीं। उस समय तो चाहिए कि और अपना साधना बढ़ाएं, और नाम जप बढ़ाएं, और पुण्यों के काम में लग जाएं, ताकि इधर वेटेज बढ़े। जैसे इधर वेटेज बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली मिराकुलसली फेवरेबल सर्कमस्टांसेस विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। तो लोगों में इनर स्ट्रेंथ नहीं है, उसके लिए लोगों को अपना लाइफस्टाइल देखना पड़ेगा। कई बार लोग बोलते हैं हमने तो किसी से गलत किया नहीं, हमारे साथ क्यों गलत हो रहा है, कोई पीड़ा क्यों दे रहा है? किसी में शक्ति नहीं है हमको कुछ पीड़ा देने की। Somebody just becomes the instrument of our own karma। पहला चीज़ है एक्सेप्टेंस।
हमने उतना दिया होगा उसको पीड़ा पिछले जन्म में। और दूसरी चीज़ है, तो उसमें करना क्या है, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को और इंटेंसिफाई कीजिए to help you rise above them, become more prayerful, more sattvic, lead a more pure lifestyle. That will help you rise above. But toxic लोग क्यों हैं? Everybody is born with two natures, two types, divine and demonic. तो जिस चीज़ को व्यक्ति ने जीवन भर नरिश किया है वही तो बाहर आएगा. And what decides which nature is nourished the most? The association we keep. Association में क्या आता है? Not just physical association with people. क्या हम देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, यहाँ तक कि खा क्या रहे हैं. एवरी टाइम यू ईट समथिंग ऑल्सो यू आर एसोसिएटिंग विद पर्टिकुलर गुणा, और वैसे क्वालिटीज हमें डेवलप हो जाते हैं. जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलनी पड़ेंगी. कई बार गलत लोगों का संग है, कैरी नेगेटिव एनर्जी, तो हम में आ जाता है. एसोसिएशन इतना डेंजरस है, इतना केयरफुल रहना चाहिए. अगर मान लीजिए आप सोफे पे बैठे एक दूसरे के बगल में, बात भी मत कीजिए. 2-3 घंटा बैठ लिए, कुछ बात नहीं किया आपने, लेकिन सडनली द डिजायर्स ऑफ द अदर पर्सन विल एंटर योर हार्ट. इट इज सो डेंजरस. एक दूसरे को देख रहे हैं सब लोग. But this is how subtle the power of association is. तो अगर इन चीज़ों से बचना है, we have to also look into our lifestyle, what we are eating, what we are watching, what we are associating with, and create a very strong spiritual connection. Make sure that the A side of the weighing scale is always heavier, so that we will not be affected. कुछ भी हो जाए. Thank you very much. Guruji, how can we mind our own mind? It's very difficult to control our mind. It just flies. कैसे अपने आप पर, अपने माइंड पर हम ध्यान रखें? हाँ, that is the. It sounds simple, mind control, but कृष्ण गीता में अर्जुन ने कुछ कहा कि it is more difficult to control the mind than to control the raging wind. कोई हरिकेन आता है, उसको कंट्रोल करना आसान है, मन को नहीं. लेकिन कृष्णा से विद प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट इट कैन बी कंट्रोल्ड. देयर आर वेरियस वेज टू डील विद द माइंड. एक सिंपल मेथड है जो टेम्परेरी मेथड है कि अगर कोई टेम्पटेशन आता है, माइंड में थॉट आता है, उसको रेजिस्ट करना. Just because a thought pops up in our mind doesn't mean we have to act upon it also. अभी हम लोग माइंड के फ्लो के हिसाब से चल रहे हैं, मन में जो आता है करें. The thought is not a command. Thoughts will come, thoughts will go. पर गुरुजी, अभी तो जो नई जनरेशन आ रही है, एक बेसिक आइडिया हो गया, कर लो आज, जी लो, कल की कल देखी जाएगी. आज बेस्ट कर लो, आज जो अच्छा लग रहा है कर लो. अभी तो सबका यही थॉट प्रोसेस चल रहा है. So that is called ignorance, अज्ञान, and that is called animalistic philosophy, animal philosophy. Because they just act based on instincts. जो मन में आया करो. They have no rules and regulations in their life. But the problem is they can do whatever they like, but humans have to think before they act. Because as human beings, हमको भगवान ने एक स्पेशल फैसिलिटी दिया है, which is called free will to choose. We have the ability to make choices. And since we have been given this facility, we are also held responsible for the choices we make. Everything that we speak, everything that we do, who made this philosophy? YOLO. कौन बनाया? You only live once. शास्त्र में नहीं है. शास्त्र में नहीं है ये. जिन लोगों को अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए अपनी लाइफ का, वो जस्ट वांट टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू रियलिटी, वो लोग बना देते. हम भले ही, अगर मैं कल को बोलूं मैं ट्रैफिक सिग्नल को नहीं मानता, मैं स्पीड लिमिट को नहीं मानता, तो मेरे मानने ना मानने से उसका एग्जिस्टेंस थ्रेटन नहीं होगा. वो रूल तो काम करेगा, अपना नियम तो काम करेगा. So everything that we speak, everything that we do will have a reaction. That's why karma is compared to a seed.
अगर जब सीड बोया जाता है तो इमीडिएटली थोड़ी दिखता है उसका फल. कुछ सीड्स fructify in 3 days, कुछ take 5 years, कुछ take 10 years. उसी तरह just because the reaction is not coming immediately doesn't mean the reaction will never come. इसलिए एक कहावत है, the mills of God grind slow but grind exceedingly fine. कोई नहीं बचता और रिएक्शन आएगा. तो इसीलिए as I said, if you lead a pious, sattvic, pure life, religious life, it will guarantee happiness for you in the long run. But if you only focus on instant happiness, instant gratification, it's very dangerous. वो गलत हो गया कुछ, reaction could be forever. जैसे किसी को मर्डर करने में कितना समय लगता है? कितना समय लगेगा श्वेता जी? Depending on the weapon. तो which is your favorite? कितना समय लगेगा? Maybe 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes? Maybe a minute. Each weapon आ जाएगी. If I don't Slow poison maybe. 15 मिनट. देखिए आखिरी 5 सेकंड में भी मारा जा सकता है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 15 मिनट. लेकिन आपको लगता है कि रिएक्शन सजा भी उसकी 2 सेकंड या 15 मिनट की होगी? इट कुड बी फॉरएवर. लाइफ टाइम तक चल सकता है, लाइफ टाइम्स तक चल सकता है. तो मेरा यही हम्बल रिक्वेस्ट है प्रेजेंट जनरेशन से कि लिव योर लाइफ कॉन्शियसली. अब सोसाइटी क्या कर रही है, वर्ल्ड क्या कर रहा है, उसके बेसिस पे मत चलिए. बिकॉज अल्टीमेटली वी विल बी जज्ड फॉर आवर एक्शंस and we'll get reactions for our actions based on what the scriptures say is right or wrong, not on the basis of what we feel and think is right. Shastra are the manuals, they are the law books for human life. So try to learn those scriptures. Or this is the age for learning. Spirituality is not a retirement program. Why do we send children to schools when they are young? Because that is the age of learning. अभी सीखा जाता है. जितना जल्दी आप लोग सीख लेंगे उतना you create that safety net around you. Don't be after instant gratification. You live your life the way Krishna wants you to live, God wants you to live. That guarantees happiness. आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए या शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस चाहिए? हमारा चॉइस है. बट माय हम्बल रिक्वेस्ट इज डोंट स्पॉइल योर लाइफ बेस्ड ऑन व्हाट द वर्ल्ड इज डूइंग. राइट इज राइट इवन इफ नो वन डज इट, and wrong is wrong even if everyone does. तो धर्म के रास्ते पे चलिए, भक्ति कीजिए, नाम जप कीजिए. द ईजीएस्ट वे. आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन की जरूरत नहीं. थोड़ा सा आप चलते हुए करिए, बैठ के करिए, स्नान करने से पहले कीजिए, बाद में नाम जप में कोई वो नहीं. एंड इट क्रिएट्स अ डिवाइन कॉन्शियसनेस. एंड इफ यू डू दैट यू विल बिकम एन एसेट टू द सोसाइटी, नॉट अ लायबिलिटी. खा रहे हैं लोग, सो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वही रिपीट कर रहे हैं. इसमें क्या ग्लोरी है ऐसी लाइफ? इफ यू कांट ऐड वैल्यू टू सोसाइटी, इफ यू कांट ऐड वैल्यू टू अदर्स लाइफ. एक चींटी भी तो वही कर रही है. A pigeon is doing the same thing. Wakes up, where's my food, where's my maid, where's my mama, comes back, sleeps, next day the same thing. तो इस लाइफ में क्या ग्लोरी है? Become an asset. सेवा करो भगवान का, समाज का, एंड लीड अ वेरी प्योर लाइफस्टाइल. कई बार हम सेवा करते हैं और हमको लगता है वी आर वेरी नाइस, बट व्हाट अबाउट योर लाइफस्टाइल? आर देयर एनी बैड हैबिट्स? आर देयर एनी सिंफुल हैबिट्स? तो हर चीज़ का रिएक्शन होता है. प्योरिटी विल गारंटी हैप्पीनेस. दैट्स ऑल. Prabhuji, is spirituality the only way to attain peace in this materialistic world? Krishna says so. Because the first thing he defines is we are not this material body. ये matter है, material body है, बदलता जाएगा. How much ever you try to hold on to it. Material means matter which is going to have beginning and an end. तो आज आप किसी मैटर से अटैच हो गए, उसी पे अपना टाइम एनर्जी पूरा लगा दी, कल को बदल जाएगा.
how much ever Ozempic you take, how much ever Botox you do. The body is keep dying. So Krishna says if one does not have this divine connection, one cannot have steady mind and peace and intelligence. Without steady mind and intelligence, you cannot have peace. Bhagwan khud bol rahe hain. And without peace, where is the question of happiness? This is the verse in the second chapter, I think 66th or 65th verse. Without connection. And the reason is simple. Again I come back to that same point of the fish out of water. हम हैं कौन पहले समझिए. We are spiritual beings. We are not this material body. So material body is a vehicle. We take care of it as much as is necessary. लेकिन हम अलग हैं इस बॉडी से. हम बोलते हैं ये मेरा हाथ, मेरा फेस, मेरा सर. We never say I face, I hand, I body. We say my body. जब किसी की मृत्यु होती है, we say he has passed away. Who? The real person. Body तो सामने पड़ा है. So the real person is me. I am speaking. I am the soul, not this body speaking. And soul is spiritual. So if we have to really attain peace and happiness, we have to start finding it in things which are of similar nature. मारवाड़ी से कनेक्ट करता है, गुजराती से कनेक्ट करता है, साउथ इंडियन will connect with. क्यों? It's closest. That's your natural connection. So just by feeding the body with comforts, best of food and facilities, it's like and expecting to be happy forever. It's like मुझे भूख लगा और मैं श्वेता जी को फ़ोन किया, श्वेता जी थोड़ा 2 रोटी खा लेना, बहुत भूख लगी है. अच्छा. That is not going to satisfy my hunger. So take care of the body, but don't forget the needs of the soul. Feed the soul also, which is the real person. जब उसको खिलाएंगे, शांति रहेगा. उसको आप नहीं खिलाएंगे, अशांति होगा. जैसे अगर आप 7 दिन नहीं खाएंगे तो फिजिकली वीक हो जाते हैं. तो 7 दिन आप सोल का फूड नहीं देंगे, हम वीक हो जाते हैं इंटरनली. और वही तो हो रहा है. छोटी छोटी चीज़ें हमको ऐसा एंजाइटी दे देती हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं. बिकॉज वी लैक दैट इनर स्ट्रेंथ, बिकॉज वी नॉट बीन ईटिंग फूड विच इज नेचुरल टू अस. यू कांट गेट अराउंड दिस प्रिंसिपल. You have to have a strong spiritual connection, that connection with God, connection with Krishna. And then you see how you become immune like a lotus leaf. चारों तरफ पानी है लेकिन आपके ऊपर एक immunity. I guess Thank you. If someone truly wants to live a peaceful, meaningful, and a balanced life, while still being successful, fulfilling responsibilities, and participating in society, what fundamental wisdom should guide them? So, how can an ordinary person live in this modern world without losing inner peace? So, Krishna has described that this example of lotus leaf. One has to live like that. And there are 4 things which you can incorporate. 4 चीज़ें कर लीजिए, तो आप इस दुनिया में रहते हो भी you'll be untouched. It's called the ABCD of spiritual life. A stands for association. Association means sang, satsang. So at least once a week हमारा एक नियम होना चाहिए कि we associate with some saintly people, some devotees, और उनके एसोसिएशन में रह के उनसे कुछ सुने. स्क्रिप्चर्स का जो मैसेज है उसको सुनना. Association, because association transforms. Association purifies our intelligence. तो इंटेलिजेंस का काम क्या है? सही डिसीजन देना. तो फिर आसान हो जाएगा. माइंड को सबड्यू करने में इंटेलिजेंस का बहुत हाथ है, बट इफ द माइंड इज स्ट्रॉन्गर देन इंटेलिजेंस अपना काम नहीं कर पाती. डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है. तो एसोसिएशन दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन सत्संग हो रहा है, तो इट जस्ट नरिशेज योर डिवाइन साइड और स्टार्व्स योर डिमोनिक साइड. जो नेचर है वो खत्म हो जाता है. इज एसोसिएशन वंस अ वीक तो होना चाहिए कम से कम. इट्स लाइक अ कैमल देखा आप लोगों ने? पक्का? सॉरी, बैठे भी हैं कैमल.
तो उसका क्या खासियत है? वो एक बार पी लेता है 100-130 लीटर और 7 दिन तक स्टोर कर लेते हैं उसको, 15 दिन तक, 7 दिन तक, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा दोबारा। तो उसी तरह से हमारा दैट वंस अ वीक थिंग विल बी लाइक दैट वाटर विच विल कीप नरिशिंग अस थ्रू आउट द वीक। एक समय भारत में एक कल्चर था, हर घर में हर दिन सत्संग होता था। फैमिली वाले आके रामायण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, आरती होगा, गांव के गांव साथ में आके शाम को कीर्तन करेंगे, महाभारत। आज भी कुछ गांव हैं ऐसे। और यही मेन कारण था कि इंडिया के द 16th century was the most wealthy and the happiest nation। ये ब्रिटिशर्स ने खुद बोला, इंडिया का गुलाम बना रहे पहले के, इनका मेन कारण है जिसको हमको ख़त्म करना पड़ेगा, इनका स्पिरिचुअल कल्चर, विच इज द रूट कॉज ऑफ देयर हार्मनी, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। उन्होंने धीरे धीरे ख़त्म किया, शास्त्रों को माइथोलॉजी कहा, गुरुकुल सिस्टम ख़त्म किया, लोगों को दूर किया वो कल्चर से। एंड देन एज सून एज दैट फाउंडेशन वाज टेकन वी बिकेम लाइक रेस्टलेस चिल्ड्रन। So B stands for books। थोड़ा समय निकाल के, भले 15-20 मिनट हो, स्पेंड टाइम विद, अब गीता पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, भागवत पढ़ लीजिए, महाभारत, कुछ तो स्पेंड सम टाइम विद द स्क्रिप्चर। वो पढ़ने के लिए दिए हैं भगवान ने। कोई बोले मेरे को हैबिट नहीं है पढ़ने की, हैबिट डालना पड़ेगा। आप जब डाइटिंग करते हैं, आपको बोला जाता है ये मत खाओ, वो मत खाओ, आदत थोड़ी है नहीं खाने की, लेकिन इतना कर रहे हैं बॉडी के लिए, हम लोग सोल के लिए गलत कुछ कर सकते हैं। थोड़ा डाइटिंग उधर भी चाहिए। एंड ईट व्हाट इज सपोज टू ईटिंग, दैट इज फूड फॉर द सोल। कुछ 15-20 मिनट से शुरुआत कीजिए एंड सी माइंड का इतना पीस आपको एक्सपीरियंस होगा जो आपने जो 10 सालों में नहीं किया होगा। जस्ट एटलीस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट डू इट। C stands for chanting, which is a primary spiritual practice। और इसके लिए ना कोई नियम है, ना कोई स्वच्छता का नियम है, समय का नियम है। इनअटेंटिवली भी होगा तो भी चलेगा। आप नाम जप कीजिए राधा कृष्ण का, हरि का नाम। कलयुग में मेन साधना यही बताई गई है। और सबसे बड़ा वेपन मन को कंट्रोल करने का इस मंत्रा, मनस त्रायते इति मंत्र, दैट विच लिबरेट्स द मन इज कॉल्ड मंत्रा। और कौन सा मंत्र? जिस मंत्र में भगवान के नाम, कलिसूत्र उपनिषद है, ब्रह्मांड पुराण है, सब में दिया गया। तो भगवान के नामों का जप शुरू कीजिए। एंड ओनली कंडीशन इज व्हेन यू चैंट, ट्राई टू हियर द साउंड ऑफ द मंत्र। If the mind wanders away, don't worry, bring it back again, focus on the sound of the mantra। इनअटेंटिवली भी चैंट होगा तो भी नाम अपना काम करता रहेगा। आजकल वो डिजिटल काउंटर्स आए हैं, रख लीजिए, उंगली में रखिए, दिन भर जहाँ भी जा रहे करते रहिए, शाम तक देखिए कितना हो जाएगा। एक एक नाम भगवान का पावरफुल। सो कृष्णा है, he says I have invested all my powers, my blessings, my benedictions in my name। जो नाम लेगा उसको एक्सेस मिल जाता है, the divine grace। And D stands for diet। तो चैंटिंग में एक नंबर फिक्स करिए कि करना ही है रोज। अगर और कुछ नहीं भी कर पाए चलेगा, बट नाम जब। एंड D डाइट। डाइट वो आप लोगों वाला नहीं, डाइट मतलब जो भी खा रहे हैं भगवान को ऑफर करके खाइए। जैसा अन्न अन्न, गीता में तो बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया इस चीज़ को, फूड। तो सत्व गुण में खाएंगे फूड, जो सात्विक फूड होता है भगवान को भोग लगा के खाइए, बिकम स्पिरिचुअलाइज्ड। तो उससे मन और बुद्धि शुद्ध होता है, क्लेंसिंग होता है। कर्मा तक को नलिफाई कर देता है अगर प्रसाद जो बन जाता है भगवान को भोग लगा के। इट काउंटरैक्ट्स आवर कार्मिक रिएक्शन। जस्ट डू दिस ABCD। ए आपको हफ्ते में एक बार करना है। बी आई एम सेइंग 15-20 मिनट करिए। चैंटिंग थोड़ा आधा घंटा कर लीजिए, और दिन में चलता रहेगा, आपके पास काउंटर है। डी इज डाइट, खाना तो है ही, भगवान को भोग लगा के खाइए। इफ़ यू कैन इनकॉर्पोरेट दीज 4 थिंग्स, आपका लाइफ एकदम परफेक्टली ट्रैक पे आ जाएगा। And you will develop that necessary strength and clarity to take the right decision in life. Thank you. Hare Krishna. Actually, open the session for Q&A। जी जी। कुछ हमारे मेंबर्स आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। किसी का कोई प्रश्न? वो पीछे। हाँ,
You're right. जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, अकाल मृत्यु का क्या कारण होता है? Like how to satisfy the soul? अगर कोई आत्महत्या करता है दैट इज ए चॉइस। बाकी अकाल का जहाँ तक है सिस्टम, मेरा जहाँ तक नॉलेज है, देयर इज नथिंग अकाल। अगर कोई कम उम्र में शरीर छोड़ दिया तो हमको लगता है अकाल मृत्यु हुआ। ऐसा नहीं है। भगवान का जो सिस्टम है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जिसका जितना समय लिखा होता है उतना करके व्यक्ति चला जाता है। अभिमन्यु का 16 साल में वध हो गया महाभारत में, तो लोग पूछ सकते हैं इतना यंग है कैसे चला गया, उसकी तो उम्र नहीं थी। नहीं, उसका समय ही उतना लिखा था। अगर आप महाभारत पढ़े, शुरुआत में ही फिक्स था कि 16 साल से ज़्यादा वो सोमदेव का पुत्र था कि उससे ज़्यादा मेरा बेटा ज़्यादा नहीं रहे धरती पे, क्योंकि मैं रह नहीं पाऊँगा उसके बिना। तो 16 साल में उसको वापस आना ही था। तो जिसका जितना समय लिखा रहता है उतना करके व्यक्ति आगे निकल जाता है, ये सोल अपनी जर्नी पे। कारण कुछ भी माने, कई बार डिजीज, कभी एक्सीडेंट, कभी नेचुरल जैसा दिखे आपको, लेकिन द फैक्ट इज वट एवर टाइम वी आर एक्सपेक्टेड टू स्पेंड, वी आर डेस्टिन्ड टू स्पेंड, उतना स्पेंड करके वी मूव ऑन। एंड हाउ डू वी लिबरेट द सोल? उनके लिए नाम कीर्तन करवाइए, भगवान के नाम को भक्तों से करवाइए, प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं, एंड भागवत करिए। ये दो खास तौर पे कलयुग के प्रभाव को काटने का, मुक्ति का सबसे बड़े साधन ये कीर्तन भगवान के नाम का और भागवत बताया गया है। और तीसरी चीज़ जो कर सकते हैं, गीता का 3रा अध्याय का रिसाइटेशन कीजिए, तो उससे अगर सोल कहीं अटका भी होगा, उससे भी उस अध्याय का महात्म्य ये है कि अगर कोई सोल कहीं अटका भी होगा गलती से, इंस्टेंटली लिबरेशन हो जाता है उसका। तो ये 3 कार्य करेंगे, हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, ईजी, और वो करना चाहिए। पीछे कोई था जी, हमारे पास्ट कार्मिक, कैन यू होल्ड योर माइक क्लोज टू? हमें हमारी पास्ट कार्मिक लाइफ के बारे में नहीं पता, या हमसे क्या गलती हुई, पास्ट कर्म कहाँ गलत हुई जी, पर हम उसका आज हमें भोगना पड़ता है, जो प्रारब्ध जिसमें हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड ओवरकम दैट। अच्छा, क्योंकि जो कार्मिक लॉ है, इट डजंट टेक इनटू कंसिडरेशन वन लाइफ टाइम। क्योंकि पहले गीता में कह दिया भगवान ने, चेंज ऑफ बॉडी इज लाइक चेंज ऑफ ए ड्रेस, दैट्स ऑल। हम उसको देखते हैं बढ़ा चढ़ा के, लेकिन फ्रॉम द यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव, चेंज ऑफ बॉडी इज जस्ट चेंज ऑफ ड्रेस फॉर द सोल। सोल इज द रियल पर्सन। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम किया और जाके वो छुप गया किसी घर में और बाहर दूसरी ड्रेस पहन के निकला, तो भी पुलिस उसको पकड़ेगा ना, बोलेगा अरे मैंने तो वो ड्रेस उस ड्रेस में किया था वो क्राइम। बोले हमको ड्रेस से मतलब नहीं, हमको तो व्यक्ति से मतलब है। सो द सोल इज द रियल पर्सन। तो चेंजिंग ऑफ बॉडी फ्रॉम द इटर्निटी पॉइंट ऑफ व्यू 50 साल 60 साल इज नथिंग। सो लॉ ऑफ कर्मा टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल लाइफ टाइम्स। तो कहीं भी भागी वो सोल, भुगतना तो पड़ेगा। अभी यू मे नॉट रिमेंबर व्हाट वी हैव डन, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। Just because the reaction is taking place, there is an effect, there must be a cause. अब हमको किसी को मलेरिया हो गया तो हम थोड़ी मच्छर को ढूंढने जाते हैं, which mosquito bit me, why, at what time. We focus on the cure. क्योर की तरफ ध्यान डालना ज़रूरी है कि क्यों हुआ, कब हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज द लॉ ऑफ कर्म इज वेरी इंट्रिकेट। कई बार वो रिएक्शन जैसा हमने किया था वैसा आता है, कई बार कई कर्मों का रिएक्शन एक साथ आता है, कई बार पिछली लाइफ का आ रहा है, कई बार 10 लाइफ टाइम पहले का भी आएगा। इट्स ऑल अबाउट किस टाइप का बीज बोया गया था। कुछ बीज 3 साल में प्रकट होंगे, कुछ 3 दिन में, इसलिए कर्मा इंस्टेंट भी होता है, डिले भी होता है। तो धृतराष्ट्र को आया कर्मा 50 लाइफ टाइम के बाद, 100 पुत्र मारे गए, एक भी नहीं बचा। भगवान ने उसको बताया कारण क्या था। बट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ह्यूमन बींग्स में भगवान ने जो फैसिलिटी दिया है, वी कैन चेंज एवरीथिंग। वी डोंट हैव टू लिव अवर कर्मा, वी कैन चेंज इट।
और भक्ति इज दैट प्रोसेस which nullifies karma to the core. और सबसे बड़ा जो भगवान कृष्ण के एक नाम में इतनी शक्ति है, पुराणों में आता है कि वो इतने जन्मों के कर्मों को नष्ट कर देता है जितना व्यक्ति करोड़ों जन्मों तक करने का सोच भी नहीं सकता. तो सोल्यूशन पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रॉब्लम को ज़्यादा ध्यान में रखिए. व्हाट कैन वी डू टू नलिफाई दिस, दैट इज इम्पॉर्टेंट. जो पास्ट हो गया, फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं. एंड सेकेंडली, if something is going wrong in my life, I might have done something wrong in the past, so at least now let me not commit any mistakes so that I don't have to go through a similar situation in future. Do's and don't. एक do's है, एक don't में आता है. कुछ और गलत मत कीजिए, और दूसरा नाम जप करिए, सब ठीक हो जाएगा. हरे कृष्ण गुरुजी जी, हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कहाँ से? ये ABCD से शुरुआत होता है ना हमारा एजुकेशन. उस ABCD को अप्लाई कीजिए, और भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं आपके लिए. नाम जप नॉन नेगोशिएबल, द मेन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कलयुग के लिए. और जैसा मैंने बताया, आसान ऑफिस जा रहे हैं, वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, काउंटर ले चलता रहे उस पर. दूसरा है एकादशी आता है 14 दिन में एक बार, उस व्रत का पालन शुरू कर दीजिए. और एकादशी व्रत जो होता है उस दिन ग्रेन्स नहीं खाए जाते, और उस दिन भगवान का रिमेम्बरेंस, सेवा, नाम जप, गीता पढ़ना, भागवत, ये सब बढ़ाया जाता है. कीर्तन करिए, मंदिर जाइए, भगवान के स्पेशल भोग लगाइए. वो दो. और अगले दिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसके बीच में वो ग्रेन्स खा के व्रत को तोड़ा जाता है. सो बेसिकली वी इंक्रीज अवर डिवोशनल सर्विस दैट डे प्रैक्टिसेस एंड वी अवॉइड ग्रेन्स. अब फास्टिंग वाला फूड खाना है, खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं. एकादशी व्रत पालन कीजिए, नाम जप. और तीसरा, 5-7 मिनट लगेगा, रोज तुलसी का सेवा कीजिए. तुलसी के सामने गए, प्रणाम किया, जल डाल दिया, दिया दिखा दिया, परिक्रमा किया, 3 फिर प्रणाम किया, हो गया. वो और सिंपल हो गया आपके लिए. ये 3 दिस साउंड सिंपल बट मोस्ट पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस which can change your life, transform your life like nothing else. ये 3 को अपना लीजिए सब लोग, and see the magic that manifests. गुरु जी, जैसे आपने कहा धर्म में रहना चाहिए, तो धर्म क्या है? पूरा आप उसको बता सकते हैं कि हम कैसे धर्म में रहें? ऐसे तो बहुत कुछ है. धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम. भगवान जो कहते हैं, भगवान ने जो दिया वो धर्म है. उनकी इच्छा के विपरीत है वो अधर्म है. तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, धर्म के 4 पिलर हैं, अधर्म के 4 पिलर हैं. धर्म के 4 पिलर हैं कंपैशन, ऑस्टेरिटी, थोड़ा तप करना, ट्रुथफुलनेस, सत्य बोलना हमेशा, कि अगर यस बोला है तो आना है फ्लो इवेंट में, समथिंग लाइक दैट. सत्य बोलना हमेशा. और चौथा है क्लीननेस, स्वच्छता रखना. ये धर्म के 4 पिलर हैं. अधर्म के 4 पिलर हैं मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन ऑफ एनी काइंड, illicit affairs between men and women and gambling. ये 4 मेन पिलर है. और जहाँ ये 4 होता है वहाँ कली का निवास होता है. कली मतलब कलयुग का देवता जगह, और वहाँ पे कलह, डिसएग्रीमेंट, डिसेंशन, एंग्जाइटी होते ही रहेगा. तो ये 4 अवॉइड कीजिए और वो 4 करिए. और साथ में ये जो 3-4 चीज़ें आपको बताई उसको फॉलो कीजिए. कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन. तो अगर आप नाम जप करेंगे तो आपके सारे धर्म का पालन हो जाएगा. एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस. I think there are 3 more questions. Jai Shri Krishna Guruji. Guruji, just like hibiscus tree flowers quickly while mango tree takes time to bear fruits, what should those think who work sincerely but see results very late? हाँ, पेशेंस. पेशेंस, क्योंकि हर चीज़ का टाइमिंग है इस वर्ल्ड में, ना जल्दी ना लेट. जैसे गोपियाँ थी वृंदावन में, वो हमेशा प्रार्थना करती थी कृष्ण के साथ हमारा संग हो, कृष्ण को मिले. लेकिन उनको भी 8 साल वेट करना पड़ा बिफोर दे मेट कृष्ण. ऑल्दो एक ही गांव में रह रही है, कंटिन्यूसली प्रार्थना कर रही थी वो, लेकिन कृष्णा वेटेड फॉर द राइट मोमेंट टू रेसिप्रोकेट विद देयर प्रेयर्स. सो जब वो समय आया, कृष्णा थॉट दिस इज द राइट मोमेंट. शरद पूर्णिमा की रात हुई थी.
दिस इज द मोस्ट परफेक्ट मोमेंट टू आंसर देयर प्रेयर्स। और ये चीज़ याद रखिए कि वो तराजू वाला एग्जाम्पल याद रखिए। अगर आप चाहते हैं जल्दी, आप जो चाहते हो, तो वो एक साइड में वेटेज बढ़ाना शुरू कीजिए और पुण्य कीजिए और नाम जप कीजिए और सात्विक लाइफ जिए और गलत जो चॉइसेस है उसको ख़त्म कर दीजिए। जैसे वेटेज पर बढ़ेगा वो स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस। वेरी सिंपल। आपको जो चाहिए उसको बांटना शुरू कर दीजिए जीवन में। एक रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट पढ़ा मैंने पुराणों में कि जनरली हमको क्या लगता है, हमको अगर वेल्दी बनना है, एक सिंपल एग्जाम्पल, और वेल्थ बटोरो आप वेल्दी हो गए, बट दैट इज शॉर्ट लिव्ड, दैट मे टेक लॉट ऑफ एफर्ट। एफर्टलेसली वेल्दी बनना है तो उसमें लिखा है इफ यू वांट टू गेट रिच, चैरिटी इज द गेटवे। क्योंकि जो हम बांटते हैं वही घूम के वापस आता है, वही बढ़ता है। आपको सुख चाहिए जीवन में, दूसरों को सुख देने में लग जाइए। आपको प्रेम चाहिए, दूसरों को प्रेम। आपको रिस्पेक्ट चाहिए, दूसरों को रिस्पेक्ट देने में लग जाइए। अपने आप रिस्पेक्ट होने लगेगा। और इफ यू गो अराउंड आस्किंग फॉर रिस्पेक्ट, एक्सपेक्टिंग रिस्पेक्ट, मिजरेबल हो जाएंगे। बट इफ यू गिव रिस्पेक्ट, यू विल गेट रिस्पेक्ट। इफ यू गिव लव, यू गेट लव। और अगर आपको जीवन में एंग्जाइटी चाहिए, दूसरों को एंग्जाइटी देना शुरू कीजिए। देखिए घर बैठे बैठे आए कहीं ना कहीं। तो एक और चीज़ याद रखिए, कर्म का सिद्धांत क्या है। मान लीजिए हमने पुण्य के काम कर दिए, लोगों की सहायता शुरू कर दी, ना दे मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू डू एनीथिंग गुड फॉर अस। चाहे वॉलंटरली ना करें, रेसिप्रोकेट ना करें, उनकी पोजिशन नहीं थी, लेकिन जो आपने गुडनेस दिया है उनको कहीं दूसरे सोर्स से घूम के वापस आए। इसी तरह अगर आप किसी को पेन देंगे, सोचेंगे ये क्या बिगाड़ लेगी मेरा, वो कुछ ना बिगाड़ पाए, लेकिन कहीं दूसरे से पेन आए। तो जो जीवन में चाहिए उसको बांटना शुरू कर दीजिए, वो आपके जीवन में बढ़ने लगेगा। दैट इज द सीक्रेट, नॉट दैट यू वेट एंड यू कीप एक्यूमुलेटिंग। भले ही थोड़ा 100 रुपये, आप एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नॉट जस्ट वॉट मनी, बट क्योंकि 20 रुपये हम चैरिटी करेंगे। देखिए कैसे बढ़ने लगेगा आपका वेल्थ। और जो सिर्फ अपने लिए जमा करके रखते हैं, अपने इंजॉयमेंट के लिए, कोई धर्म का काम नहीं करते, कोई चैरिटी नहीं, भगवान आगे चल के कटोरा पकड़ा देंगे। जो आपको बेगर्स दिखते हैं, वो एक साधु संत बता रहे थे, त्रिकालदर्शी से मिले, और महाभारत में भी आता है, शिव जी कहते हैं दे वर ऑल मिलियनर्स बिलियनर्स इन द पास्ट लाइफ, लेकिन सारा धन अपने लिए रखा, अपने इंजॉयमेंट के लिए, कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई धर्म का काम नहीं किया, इसके अंदर डिप्राइव्ड ऑफ दोज फैसिलिटीज इन दिस लाइफ। तो आप बांटिए बांटिए बांटिए, प्रेम बांटिए, रिस्पेक्ट बांटिए, धन बांटिए। जितना बांटेंगे ऐसा एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। डॉक्टर मिश्रा पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि बचपन से ही दीक्षा तो दी है, नाम जब भी चलता है, और लेकिन सुख और दुख जब आते हैं तो ये शारीरिक रूप से भी सामने वाले को पता लग जाता है कि आज ही खुश है, आज ही दुखी है। अंदर ही अंदर पता है कि ये भी लॉर्ड कृष्णा की ही देन है। तो जब मैं ये सवाल मेरी माँ से करती हूँ तो बोलती है कि स्थित प्रज्ञ हो जाओ। वो तो स्थित प्रज्ञ हो गई है, लेकिन क्या है कि कोई भी खुशी आती है तो हम तो खुद भी लेते हैं, नाच भी लेते हैं, मस्ती भी कर लेते हैं, और दुख आता है तो क्षणिक भर के लिए वो आंसू भी निकलते हैं। तो मम्मी से पूछती है स्थित प्रज्ञ कैसे हूँ, तो वो तो मुस्कुरा देती है। ये सवाल मेरा ये है कि नाम जप करते हैं और मतलब ईश्वर पर अटूट विश्वास है और जो वो कर रहा है सब अच्छा कर रहा है, लेकिन ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं ये सब कुछ बता देते हैं, अंदर पता है लेकिन बता देते हैं। फिर कभी कभी भी कहते हैं अरे बचपन से नाम जप करते आई हो, अब तो ऊपर उठ जाओ। तो इसका मेरे पास सवाल ये है कि मैं स्थिर प्रज्ञ कैसे बन जाऊँ। राम जी भी तो जब हनुमान जी को लेकर आए, तो हनुमान जी जब लेकर आए थे तो वो प्रसन्न हो गए थे, पर संभल बोला था। और जब राम जी की सीता जी का उनका बेटा हुआ तो उनकी आंखों में आंसू आए, तो मेरा तो मैं क्यों नहीं, मैं भी तो इंसान थी, मेरी भी आंख में आंसू आ सकते हैं, मैं खुश भी हो सकती हूँ।
आपने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया। बस वही, just because we are doing bhakti doesn't mean we become more emotionless, बल्कि इमोशंस और रिफाइन हो जाते हैं। But the fact is we rise above those emotions immediately। वो डिफरेंस है जो भक्ति करता नहीं करता। सबके जीवन में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन जो भक्ति कर रहा है वो जल्दी ऊपर उठ जाएगा। दैट इज द रिवॉर्ड। वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं, भगवान को जब देना होगा। इनको इधर एक प्रश्न, आपका भी प्रश्न है? एक मिनट। प्रणाम। मेरा एक सवाल है और वो मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि इसका मुझे उत्तर मिले, पर मुझे मिलता नहीं है क्योंकि भगवान मेरे सामने आते नहीं हैं और उत्तर मिलता नहीं है। लाइक जैसे कहते हैं कि हर कर्म की सज़ा, मतलब बुरे कर्म की सज़ा होती है, और ये सच भी है कि होती है। बहुत सारे लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जो बेचारे शुरू से दुख पाते हैं और वो आज तक पाते आ रहे हैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल आता है, अगर श्वेता फोन करेगी 15 मिनट में या 3 सेकंड में, तो सज़ा उसको तुरंत मिलेगी ना, मतलब पुलिस पकड़ेंगी, फिर सज़ा देगी। मेरा कहना ये है कि अगर हम कर्म, बुरे कर्म इस जन्म में कर रहे हैं, तो भगवान अगले जन्म में या फिर अगले 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 इतने जन्मों की प्रतीक्षा क्यों करता है? इसी कर्म का, इसी जन्म में जो कर्म किए हैं उसकी सज़ा इसी जन्म में क्यों नहीं मिलती, ताकि सबके लिए सबब हुआ कि जैसा करोगे वैसा बनोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो पूरे कर्म करते हैं लेकिन उनकी लाइफ बहुत अच्छी। कौन है वो? नहीं जाने ऐसे बहुत सारे लोग हैं। नहीं, देखिए कैसा है, अगर कोई आज गलत करके भी अच्छा फल भोग रहा है तो उसके पिछले कर्म हैं जो चल रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, और जब उसका स्टॉक खत्म होगा तो वो फॉल डाउन भी होगा, इसका भी फल आएगा। पेशेंस। हम यहाँ अपने कर्मों पे ज़्यादा ध्यान दें, अच्छा है, दूसरा क्या कर रहा है, कितना भोग रहा है, हमारे कंट्रोल से बाहर है। अगर किसी ने गलत करके भी अच्छा वो फल भोग रहा है, बहुत अच्छे कर्म हैं उसके पुराने, पर जितना वो भोगता है उतने वो कर्म नष्ट होते जाते हैं, और जिस दिन उसका स्टॉक खत्म हुआ, इसका स्टॉक उसको भोगना पड़ेगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिए। लास्ट क्वेश्चन फिर गुरुजी यहीं पर ही है। मैं यही हूँ, आई कैन इलैबोरेटली एक्सप्लेन दिस, बट अभी थोड़ा जल्दी में हूँ जी। फॉर्मल वाइंड अप कर देंगे उसके बाद। या गुरुजी, पितृदोष के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि घर में पितृदोष है और उसकी पूजा कराओ ठीक हो जाएगा। जनरली बहुत एक्चुअली चल रहा है, तो क्या सच में पूजा कराने से वो ठीक हो जाता है या फिर हमें वो 3rd अध्याय खाली रिचुअल पे डिपेंड नहीं है। बेस्ट है नाम कीर्तन, भागवत, ये दोनों तीनों से पितृ मुक्त होते हैं। पितृ तो प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार में कब जाके वंश में हरि भक्त का जन्म हो ताकि हमारी मुक्ति हो सके। एक व्यक्ति भी परिवार में अगर कृष्ण भक्ति करने लगता है तो पितृ अपने आप मुक्त हो जाता है, पूजा पाठ की भी आवश्यकता नहीं है। पर सारे प्रोसेस हर कोई बहुत प्रोसीजर से करता है। सॉरी, सारे जो प्रोसेस होते हैं आफ्टर मृत्यु, तो वो हर कोई बहुत अच्छे से करता है, प्लस श्राद्ध अच्छे से करता है, तो पितृदोष हमेशा क्यों ये? नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चल भाव से करने वाले पुरोहित चाहिए, प्योर हार्टेड, जो जिनका जीवन भी प्योर है, सात्विक है, जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के काम करते हैं। जब वैसे लोग करते हैं और जो करवाने वाले हैं उनका भी भाव, तो दोनों प्योर हैं, तब जाके वो काम होता है। इसलिए कलयुग में कहा है कि बाकी सब में दोष निकलेगा, खाली नाम कीर्तन, नाम जब भगवान का जहाँ हो जाए, भागवत हो जाए, वो भी शुद्ध भक्तों के द्वारा, तो उससे सब ठीक हो जाता है। पितृलोक भी आपको आके प्रणाम करके जाएंगे। और आपने कहा कि किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो आजकल हम ब्लैक मैजिक बहुत हाँ, वो तो है, लेकिन भगवान के भक्त का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए वो सुरक्षा कवच जरूरी है, नाम जप वगैरह वगैरह हो सब। यस, आपका प्रश्न है कि मुझे एक छोटा सा सवाल है कि कृष्णा की कोई ऐसी लर्निंग जो हम हमारे बिजनेस में हमेशा फॉलो करें, अदर देन कि एथिक्स फॉलो करनी चाहिए, लाइक एक लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग? कि
कुछ भी सी बिजनेस में आप 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए की बेचें चलता है, लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करें तो फिर वो अपराध हो जाता है। You can sell 10 rupees things for 20 rupees, you are allowed to make profit, but don't sell the product which is supposed to be A quality, but B quality को A quality बोल के दे दिया, that becomes, so वो चीज़ें अवॉइड करें। और जो आप बिजनेस में प्रॉफिट होता है उसका थोड़ा सा हिस्सा चैरिटी होना चाहिए। अच्छी कॉजेस कोई ढूंढिए एंड दीजिए उसको। ये धर्म है, क्षत्रिय ये जो गृहस्थ लोग होते हैं उनका धर्म है। ये 2 चीज़ें कीजिए। अवॉइड दैट चीटिंग नहीं बोल सकता इसको मैं, बट डुप्लिसिटी बोल लीजिए। यू आर अलाउड टू मेक प्रॉफिट, एक्स्ट्रा चार्ज कीजिए, बट क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज, यू डोंट टेल लाइज दैट वे, एंड चैरिटी डोनेट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हम क्या 2 मिनट कुछ भजन करके इसको लेट्स टू कीर्तन प्लस जी का ऑर्डर मानना पड़ेगा। सो आई विल बी चैंटिंग एंड आप ध्यान से सुनिए, देन यू ऑल सिंग इन कोरस, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। एवरीवन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम And a very warm good evening to everyone. As we gently draw the curtains on this soulful and meaningful evening, one emotion rises above all. Gratitude. First and foremost, our deepest product.
and heartfelt thanks to Sri Nityananda Charandarji, guiding us inward, helping us pause, reflect, and reconnect with what truly matters. Your presence has truly elevated this evening into a moment of inner awakening for all of us. On behalf of Flow Indore, I, Vandana Gujarati, Chairperson-elect, extend my sincere gratitude to each one of you for being here, for your time, your presence, and your openness to receive. Special round of applause for our featured sponsors, Punjabi Saraf by Floyd Anu Anand and Chitakani, LV Patel by Manish Patel, and Jaguar Made in India for the world. Your continued support empowers Flow to create a meaningful platforms and impactful experience. A heartfelt thanks to our valued partners, associate partner, Soma Vehicles by Floyd Shwetam Ramesh Agrawal, furniture partner, Davina Furniture by Floyd Kopal Maheshwari, mobile partner Oppo by Ashwini Nagar, celebration partners Focus by Floyd, Sodan Shah Sukha and Adam A. Creative partner Mango by Floyd Pansi Pahawa, gifting partner Big Find. A warm appreciation to our venue partners, The Park, and to our media partners for taking the Flow story beyond these walls. To our dedicated committee members, your passion, precision, and teamwork are what bring every event to life. Thank you for your unwavering commitment. Now, may I invite our sponsors to kindly join us on the stage for a group photograph. After that, we welcome all members to come forward for photograph with our SED speaker. Let us continue this beautiful evening with conversations, connection, and warmth over high tea. Together, we reflect, we grow, and we move forward.